everyone, welcome back to my YouTube channel, The French Hub. In today's video, we'll start chapter number 9 of Mon Passport 2, which is Les loisirs préférés des Français, means the favorite leisure activities of French people. Leisure activities कौन सी होती है? उनको आप लोग अपनी हॉबीज़ भी कह सकते हो, ठीक है, जो कि आप लोग फ्री टाइम में प्रैक्टिस करना पसंद करते हो, उनको हम लीजर एक्टिविटीज़ बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर जो है हमारा रीडिंग पार्ट है, उसके अंदर हमारे पास एक टाइप ऑफ लेटर दिया गया है छोटा सा, उसको हम रीड करेंगे एंड देन विल कम टू द ग्रामर टॉपिक्स। बहुत आसान चैप्टर है, जस्ट द थिंग इज आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसके अंदर। ओवरऑल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी चैप्टर। सो ले लुइसी प्रेफरे दे फ्रांसे एज द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज। सो यहाँ पर हमारे पास एक लेटर लिखा गया है जो कि लुइस ने लिखा है। लुइस हैज़ रिटन इट फॉर हुम? फॉर अकृत, ठीक है, आकृत, अकृत, वट एवर यू वॉन्ट टू से। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बाई रीडिंग इट। सो सबसे पहले जो हमारा राइट हैंड साइड है, टॉप मोस्ट राइट हैंड साइड, वहाँ पर हमारा लिखा गया है पारी, विच इज़ पेरिस, एंड ल जॉम्वी ल दी सेट जॉम्विए विच इज़ 17 जनवरी। तो क्या हुआ? प्लेस, कोमा एंड दी डेट। तो ये हमारा फॉर्मेट हमें पता चल रहा है। देन एट द लेफ्ट मोस्ट साइड इट इज़ शैर अकृत और आकृत, वट एवर इट इज़, means dear Akrit. Como vas-tu means how are you. J'ai reçu ta lettre means I have received your letter. Tu m'as demandé quelles sont les activités de loisirs pratiquées par les Français means you have asked me what are the leisure activities practiced by the French people. Je t'écris pour en parler means I am writing to you to talk about it. Les Français aiment bien écouter de la musique means the French people loves listening music. Regarder un film means watching a movie à la télévision means on the television or in DVD. Les Français utilisent l'ordinateur pour surfer sur Internet, mais aussi pour s'occuper de leurs photos ou encore télécharger de la musique. So it is, ये मैंने पूरा annotate कर दिया, the line is not visible. Okay, now it says the French people use the computer, ordinateur is a computer, for pour surfer sur internet, for surfing or browsing on the internet, but also इंटरनेट पर ब्राउज करने के लिए तो वो यूज़ करते ही हैं, एंड ऑल्सो फॉर कीपिंग देयर फोटोज सेफ, ठीक है। सो ऑक्यूपे मीन्स टू टेक केयर और कीप सेफ देयर फोटोज. Ou means or, encore télécharger de la musique or download some music. Il y a d'autres qui aiment bricoler ou faire du jardinage means there are others who likes to tinker or do gardening. अब जो bricoler है उसका मीनिंग होता है tinker. अब tinker क्या होता है? TINKER. जैसे कि आप लोग अगर फ्री हो, आपका मन करता है कि हम कुछ जैसे कुछ रिपेयर कर दें, मान लो किसी कबर्ड का कुछ टूट गया है, तो हम सोचते हैं हाँ खुद ही डालकर हम उसको ठीक कर सकते हैं, क्राफ्ट वगैरह कर सकते हैं। तो ब्रिकोले वही होता है, दैट यू आर अटेम्प्टिंग टू रिपेयर और इम्प्रूव समथिंग व्हेन यू आर फ्री। इट्स नॉट लाइक आप बिल्कुल मैकेनिक बन जाते हो, नो, इट्स जस्ट लाइक इट्स योर पास टाइम, ठीक है। देन इल lise aussi beaucoup de romans, des magasins et des bandes dessinées means they also read a lot of novels, magazines and comic books. Then, quand ils sortent, les Français vont beaucoup au cinéma. Means when they are outing, मतलब बाहर जाने का जो वो प्लान करते हैं, तब जो फ्रेंच पीपल है, दे मोस्टली दे लाइक गोइंग टू सिनेमा, ठीक है। Les jeunes passent beaucoup de temps à boire des cafés et les étudiants aiment bien sortir au ville avec des amis. Means जो young people होते हैं, they pass their times in drinking coffees, एंड जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, दे लाइक गोइंग आउट इन द सिटी विद देयर फ्रेंड्स. Les Français apprécient aussi les visites de musées means the French people also appreciate visits of museum, theater, concerts of rock, jazz, pop music, etc. Et les Indiens, quels sont les loisirs préférés des Indiens? Écris-moi means and the Indians, what are the favorite pastimes of Indians? Write to me about it. J'attends ta lettre means I'm waiting for your letter. Bisous means kisses. Louis. So this is how we have completed this letter. Now अब हमारे पास क्वेश्चंस पूछ रखे related to this, you can answer it. Okay, अगर कोई भी डाउट होता है यहाँ पर तो you can ask me in the comments. Then coming to the grammar topic of this chapter, which is very easy, the interrogative adjective.
अब आप लोगों को पता है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। वैसे ही हमने इंग्लिश में एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी पढ़े हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स जैसे विच, व्हाट, वेयर, व्हेन, सो ऑल दीज थिंग्स WH फैमिली से जो बिगिन करते हैं वो वाले। तो यहाँ पर आज हम एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं विच इज़ विच और वट, जो कि हमारा है केल, QUEL, जिसका मतलब होता है विच और वट। ठीक है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्रेंच के अंदर हमारे हर एक नाउन का खुद का जेंडर होता है, तो उसी के हिसाब से जो हमारा केल है उसके भी हमारे कुछ सब पार्ट्स बन गए हैं फॉर अकॉर्डिंग, मतलब जो जिस नाउन के साथ वो यूज़ हो रहे हैं उसको अकॉर्ड करने के लिए, उसके साथ सूट करने के लिए। ठीक है। अब देखो केल जो हमारा यूज़ होता है वो हम यूज़ करते हैं मास्कुलिन सिंगुलर के साथ। वैसे ही अगर हमें एक फेमिनिन सिंगुलर नाउन दिया है तब हम केल का यूज़ नहीं कर सकते, तब हमें यूज़ करना पड़ेगा QUELLE विच मीन्स विच और वट। ठीक है। वैसे ही अगर हमें हमारे पास मास्कुलिन प्लूरल नाउन दिया गया है तब हम यूज़ करेंगे QUELS, एंड वैसे ही फेमिनिन प्लूरल नाउन नाउन दिया गया है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे QUELLES। इन सब का हमारा मीनिंग क्या होता है, विच और वट, बट जो हमारा डिपेंडेंसी है इनकी वो किसके ऊपर है, नाउन के ऊपर। ठीक है। तो जैसा नाउन है वैसा ही हमें यहाँ से पुट करना है। ऑलराइट, सो समझ में आ गया होगा ना। ओके, नाउ कमिंग टू द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, दिस दैट दीज दोज वाले। ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो हमारे फ्रेंच के अंदर हैं जिनको हम बोलते हैं les adjectifs démonstratifs, उनको भी हमारा कैटेगरीज वाइज डिवाइड करा गया अकॉर्डिंग टू द नाउन। अब जब हमारा नाउन है मैस्कुलिन सिंगुलर तब हम यूज करेंगे CE। वैसे ही फेमिनिन सिंगुलर है तब हम यूज करेंगे CETTE। ठीक है। वैसे ही जब भी कोई मैस्कुलिन नाउन है बट वो वॉवल से बिगिन करता है तब हम यूज करेंगे CET। वैसे ही कोई फेमिनिन नाउन है बट वो वॉवल से बिगिन करता है तब हम यूज करेंगे CETTE। वैसे ही कोई प्लूरल नाउन है, प्लूरल दोनों के लिए होगा, मैस्कुलिन प्लूरल भी फेमिनिन प्लूरल भी, तो हम यूज करेंगे CES। ठीक है। दिस दैट दीज दोस्त, ये भी समझ आ गए। नाउ कमिंग टू दी वर्ब्स, बहुत आसान है, जस्ट कॉन्जुगेशन दे रखी है हमारे पास दो तीन वर्ब्स की, दीर, लीर and accrere. Dear means to say or to tell, leer means to read, and accrere means to write. तो ये कॉन्जुगेशन दे रखी है je दीत, you दी, इल एल दी, नु दीजो, वो दीत, इल एल दीज। तो ये हमारी जो कॉन्जुगेशन है ये हमें याद करनी पड़ेगी। देयर आर एक्सेप्शंस, जो एक्सेप्शंस हमें याद करनी पड़ती हैं। ऑलराइट। वैसे ही लीर वर्ब भी je ली, tu ली, इल एल ली, नु लीजो, वो लीजे, इल एल लीज। Écrire verb j'écris, tu écris, il elle écrit, nous écrivons, vous écrivez, il elle écrit। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक की पॉइंट दे रखा है, द वर्ब डेक्रीर ए कॉन्जुक्वे कॉम एक्रीर मीन्स, जो डेक्रीर वर्ब है विच मीन्स टू डिस्क्राइब, वो हमारी एक्रीर वर्ब की तरह ही जो है कॉन्जुकेट होती है। डेक्री, 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 डेक्रीवो, डेक्रीवे, डेक्री। ठीक है। मतलब कि क्या ऐड हो जाता है, वी ऐड हो जाता है, जैसे कि एक्रीर वर्ब में हुआ। सो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस चैप्टर। We'll meet in the next video where we are going to cover the exercise part of this chapter. Till then अपने doubts अपने mind में रखना, या फिर अभी साथ के साथ comment कर देना, या फिर exercise में साथ के साथ मुझसे पूछ लेना। And if you have any requirement for any book, कोई भी बुक आप लोगों को चाहिए, सो यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन माई Gmail ID, जो कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती भी हूँ या फिर कमेंट्स में भी आप लोगों को बताती हूँ, friendship25@gmail.com। सो वहाँ से मैं आप लोगों को PDF जिस भी चीज़ का आपको चाहिए दैट इज़ अवेलेबल विद मी, मैं आपको ज़रूर दूँगी। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल्सो यू कैन आस्क मी डाउट्स ओवर देयर एज वेल। ऑलराइट, ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।